Good morning, student. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Today, we'll be discussing another topic from your social science book, that is lesson number 16, geography section, the Earth in the solar system. द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या पोजीशन है और किस तरह का है, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ें। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, इन द नाइट द स्काई इज डॉटेड विद न्यूमरस bodies that shine and twinkle. The moon also appears at night. All these bodies appear to us hanging up in space, which the ancient people called heaven. That is why all these objects, that the sun, moon and star, etc. are called heavenly bodies or celestial bodies. Our own earth is also a part of this system, and thus it is also called a heavenly body or a celestial body. दिन में सूरज हमें नजर आता है, रात को चांद तारे नजर आते हैं और कभी कभी हमें कुछ और चीजें भी दिख जाती हैं। पहले लोग हम क्या देखते हैं, अभी आज हमें ये दिखता है कि आकाश से सिर्फ ऐसे ही लटक रहे हैं, तो पहले वाले लोग इन्हें हेवनली बॉडी के नाम से पुकारते थे और फिर धीरे धीरे हेवनली बॉडी और सेलेस्टियल बॉडी के नाम से इन्हें जाना गया। These heavenly bodies are grouped as stars, planets, satellites and asteroids. Now stars, तारे क्या हैं? These are self-luminous bodies. It means they have their own light, heat and light. Stars are made of hot burning gases. Stars self-luminous body होती है, मतलब इनमें खुद की रोशनी होती है, खुद की रोशनी और खुद की ही गर्माहट होती है। ये गर्म और बर्निंग गैसेस से बने होते हैं। They are usually very big in size, but as they are very far from us, they look small and tiny like little dots in the sky. ये बहुत दूर हैं, बड़े होने के बावजूद भी दूरी के कारण हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। Our sun is also a star. It looks bigger and brighter because compared to other stars, it is much nearer to our earth. सूरज भी एक तारा है, लेकिन क्योंकि वो बाकियों से जो डिस्टेंस है अर्थ का बाकी चीजों से सन थोड़ा सा पास में, तो इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा हमें बड़ा नजर आता है। इफ यू सी द स्काई एट नाइट, यू विल फाइंड दैट सम स्टार्स अपीयर सिंगल, whereas some appear to be seen in groups. Groups of stars forming a particular pattern are called constellations. रात को तारे हमें दिखते हैं, कुछ तो अकेले तारे दिखते हैं, लेकिन कभी कभी झुंड में तारे दिखाई देते हैं। जो तारे झुंड में दिखाई देते हैं उन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। One such constellation is a group of 7 stars, which is called Saptarishi. Saptarishi form a part of the constellation of the Big Bear, also known as Ursa Major in Latin. एक ऐसा ही कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि, जिसका मतलब है 7 ऋषि, और ये एक बड़े भालू के शेप में दिखाई देता है और जिसे उर्सा मेजर भी कहा जाता है। The Saptarishi are regarded as very important because in ancient time they used to guide the sailors at night. सप्तऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले सेलर रात को इसी को देखकर आगे रास्ता बनाते थे। The first 2 stars of Saptarishi always point to the pole star, which constantly shines on the north pole. Thus, when one direction, that is in north direction, was found, it was quite easy to know the other 3 directions. जब इन तारों को देखा जाता है, सप्तऋषि के सबसे पहले 2 जो तारे हैं वो नॉर्थ दिशा को दिखाते हैं, तो जब एक दिशा मालूम पड़ गई तो अपने आप ही बाकी की 3 दिशाएं मालूम पड़ जाती। Like the Saptarishi, there are many other constellations in sky. Stars are very far off from our earth. The light from the stars passes through different layers of the atmosphere with varying densities. As a result, they seem to be twinkling. तारे हमसे बहुत दूर हैं और अलग अलग लाइनों और लेयरों में बने हुए हैं और ये हमें चमकते हुए या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। Stars are so far off from us that we cannot understand or express this distance in kilometer. ये इतने दूर हैं कि हम इनकी जो दूरी है उसे डिस्टेंस और किलोमीटर और माइल्स में तय समझ में नहीं कर पाते हैं। We express this great distance in terms of light years. Light year
at a tremendous speed of about 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम तारों की जो दूरी है उसे लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, और लाइट जब ट्रैवल करती है तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में की दूरी डिस्टेंस तय कर लेती है, तो उसी हिसाब से हम लाइट ईयर मानते हैं। The distance that light travels in a year is called a light year. जो दूरी लाइट एक साल में तय करती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक का दूरी तय कर लेती है, और एक साल में लाइट जितनी जगह तय करती है, जितनी दूरी पे वो पहुंचती है, उतना लाइट ईयर। There are some stars which are so far off that it may take millions of years for their light to reach us, while the light from our own sun reaches us in about 8 minutes. The light of Proxima Centauri, the nearest star to our sun, reaches us in 4 minutes. कुछ तारे इतनी दूर हैं कि उन्हें उनकी रोशनी हम तक पहुंचे इसमें बहुत सारे साल लग जाएंगे। सूरज भी एक तरह से तारा ही है, इसकी रोशनी हमारे पास में 8 मिनट में पहुंच जाती है, और एक सेंचुरी नाम का तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा है, जिसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो 9 प्लैनेट्स आप पढ़ते थे, 9 7 अलग अलग, फिर 8 जो ये पढ़े हैं वो सारे 8 प्लैनेट्स ने मिलकर सोलर सिस्टम बना। The solar system means the family of the sun, and the 8 planets that revolve around the sun are members of solar system. सूरज और उसके 8 जो प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ये सारी चीजें मिलाकर 9 चीजें सोलर सिस्टम बनाती हैं। 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Besides the sun and planets, there are some smaller celestial bodies as well as in solar system. These small bodies are called satellites. Satellites revolve around the planets in same way as the planets revolve around the sun. Our Earth has one satellite which we call the पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, और कुछ तारे सूरज और पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। कुछ छोटे होते हैं, उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है, और एक सैटेलाइट है मून, जो हमारा अर्थ का सिर्फ इकलौता एक ही सैटेलाइट है जिसे हम मून के नाम से, अर्थ के सैटेलाइट को मून के नाम से हम जानते हैं। द सन इज द बिगेस्ट member of solar family. All planets and satellites etc. revolve around the sun. It is thus the center of the whole solar system. It is about 13 times bigger than our Earth. सूरज बहुत बड़ा है और उसे वो सोलर फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर कहलाता है, और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं और जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। The sun is made up of extremely hot gases and it gives us a lot of heat and light, which is the source of an energy in the solar system. सूरज बहुत सारी हॉट गैसेस का बना हुआ है, और जो कि दूसरे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो भी प्रदान करता है, जो सोलर सिस्टम को ताकत देता है। Our Earth gets only a part of energy. अर्थ को उस सूरज की जो एनर्जी उसका सिर्फ एक ही हिस्सा मिलता है। विदाउट द सन्स एनर्जी आवर अर्थ वुड बिकम कोल्ड एंड लाइफलेस। सूरज की इस एनर्जी के बिना अर्थ ठंडा और बेजान हो जाता है। इट इज द सन विच सस्टेन्स ऑल लाइफ। दैट इज व्हाई मेनी एंशिएंट पीपल रिगार्डेड सन एज अ गॉड। सूरज के बिना जीवन नहीं है, इसलिए सूरज को पूजा भी जाता है। इन द ऋग्वेदा देयर आर मेनी हिम्स, सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ द सन और सूर्य। You'll be amazed to know that the sun is not the biggest star in the universe. It is only a medium-sized star. The bigger stars are very far away from our Earth, so they look smaller than the sun. The sun looks bigger and brighter compared to other stars because it is much nearer to the Earth. अब planet अलग-अलग distance पे हैं,
कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, उनकी डिस्टेंस सूरज से उनकी जो दूरी है वो ही उनकी साइज को बताता है। You will be amazed to know that the sun is not the biggest star in the universe. सूरज सबसे बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन वो बड़ा कैसे दिखता है? बाकी के 8 प्लैनेट से वो कितनी दूरी पर है, ये बाकी के प्लैनेट्स की साइज को बताओ। Now planets. There are 8 planets in our solar system. They, according to their distance from sun, are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Venus is the hottest. 8 प्लैनेट है। सूरज से दूरी के अनुसार ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है। प्लैनेट कैन ऑल्सो बी रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन द असेंडिंग ऑर्डर। दे आर मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। In this way, the largest planet in our solar system is Jupiter, while smallest planet is Mercury. सबसे बड़ा जुपिटर है और सबसे छोटा मरकरी प्लैनेट है। Besides Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are larger than our Earth, while Venus, Mars and Mercury are smaller than our Earth. पृथ्वी से या अर्थ से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बड़े हैं और वीनस, मार्स और मरकरी अर्थ से छोटे। नाउ नेक्स्ट टेबल में आपको सन से उनकी डिस्टेंस पता लग रही है। द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ विच आर कॉल्ड देयर ऑर्बिट्स। प्लैनेट अपनी ही एक पर्टिकुलर रास्ते पर चलते हैं जिसे कि ऑर्बिट कहा जाता है। They also rotate on their own axis. All the planets move around the sun in same direction, but they do not take the same time to complete a revolution. हर कोई एक ही दिशा में चलते हैं लेकिन सबका समय अलग अलग होता है। A planet which is nearer the sun takes less time than the one which is farther from the sun. सूरज के पास में जो है वो कम समय लेगा और जो दूर है वो ज्यादा समय लेगा। Thus, Mercury, which is nearest planet to Sun, completes one revolution in 88 days, while Neptune, which is farthest, takes 164.80 years to complete it. मरकरी जो सूरज के सबसे पास है वो सूरज का चक्कर काटने में सिर्फ 88 दिन में सूरज के चक्कर काट लेता है, और नेपच्यून जो सूरज से सबसे दूर है वो एक चक्कर कंप्लीट करने में 164.80 ईयर्स लगा देता है। Our Earth revolves around the sun in 365 days and 6 hours. पृथ्वी सूरज के सन के चारों तरफ अर्थ 365 डेज और 6 घंटे में पूरा करती है। Thus, compared to Earth, Mercury takes less time in completing one revolution around the sun because it is nearer to sun as compared to Earth से मरकरी। यदि हम डिस्टेंस के माध्यम से नापें तो मरकरी सूरज का चक्कर जल्दी काट लेती है और अर्थ को ज्यादा समय। स्टार्स कंपेयर टू प्लैनेट। नाउ स्टार्स और प्लैनेट को अगर हम कंपेयर करें तो हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट? अ स्टार इज स्टेशनरी लाइक द सन, व्हाइल अ प्लैनेट लाइक अर्थ इज ऑलवेज मूविंग और वॉन्डरिंग। स्टार स्थिर होता है, एक जगह फिक्स होता है, और प्लैनेट घूमते रहते हैं। स्टार इज ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड हैज इट्स ओन लाइट, व्हाइल प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। तारे की खुद की रोशनी होती है और प्लैनेट की नहीं होती है। स्टार गिव्स लाइट टू प्लैनेट व्हाइल प्लैनेट रिसीव सेम फ्रॉम द स्टार। तारा रोशनी देता है और प्लैनेट रोशनी लेता है। स्टार आर न्यूमरस इन नंबर व्हाइल प्लैनेट आर ओनली 9 इन नंबर। स्टार बहुत सारे हैं, प्लैनेट सिर्फ 9 ही हैं। तो इन चीजों से हमने आज देखा कि स्टार क्या है, प्लैनेट्स क्या है, हमारा अर्थ कैसा है, डिस्टेंस क्या है, सन क्या है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। टुमारो विल मीट विद द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर।